Good morning, my dear students. Let us continue the story Indigo. Yesterday, we read that Rajkumar Shukla had gone to Mahatma Gandhi and asked him to help the sharecroppers of Champaran. Mahatma Gandhi was busy, but he was impressed by Rajkumar Shukla's determination and told him that he would be able to come with him only after completing his prior uh, engagements, means programs that had already been going on. So after all this, Mahatma Gandhi and Rajkumar Shukla reached Patna. From there, Mahatma Gandhi went to Muzaffarpur, where he was welcomed by Professor J.B. Kriplani, and he stayed at the home of Professor Malkani. They both were government teachers, professors. So it was said that it was very extraordinary thing for government officials to help such people like Mahatma Gandhi, because Mahatma Gandhi was fighting for home rule. So the people who were in government services could not help these kind of people. If they did, they would have to bear the brunt of Britishers. They would have to bear the anger of the Britishers. So no one helped these kind of people. Which kind of people? Who were fighting for home rule, who were fighting for freedom. So till this point we read yesterday, and now let us continue. So we have read this till this point. The news of Gandhi's advent. Advent means arrival, Agman, and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. महात्मा गांधी क्यों आए थे, गांधी जी क्यों आए थे, ये बात मुजफ्फरपुर से चंपारण तक पहुंच गई. शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण began arriving on foot and by conveyance, by vehicles, whatever they got, to see their champion. Actually, Gandhi was their champion because they had heard, उन्होंने सुना था कि कोई आया है उनकी हेल्प करने के लिए, वो उनके लिए मसीहा था, उनका चैम्पियन था. सो उन्होंने पैदल या किसी भी व्हीकल से आना स्टार्ट कर दिया चंपारण से मुजफ्फरपुर. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उन्होंने भी महात्मा गांधी को समझा दिया व्हाट वाज द मैटर. दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड peasant groups in court, means those lawyers fought from the side of these farmers in the court. They told him about their cases and reported the size of their fee. उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई क्या केस था और वो फ़ी कितनी लेते थे उन गरीब किसानों से. गांधी चाइडेड द लॉयर्स. गांधी चाइडेड मीन्स रिब्यूक्ड, डांटा. गांधी जी ने डांटा द लॉयर्स को फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स. तो गांधी जी ने उनको बोल दिया भाई तुमने इतनी ज़्यादा फीस क्यों ली इन गरीब किसानों से. और फिर उन्होंने बोल दिया कि अब कोर्ट्स में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड. ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है. वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्टिकन. क्रस्ट मीन्स दे आर इन फियर, दे आर एक्सप्लॉइटेड.
Law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. So Mahatma Gandhi wanted them to be free from fear. What kind of fear they had? They had the fear of Britishers, and it was in their subconscious mind. When someone has learnt or someone has seen something from his childhood, it goes into the subconscious mind. ये जो डर था ना ब्रिटिशर्स का, ये बचपन से था. लोग बूढ़े होकर के मर गए बट दीज ब्रिटिशर्स वर स्टिल देयर. तो उनके खिलाफ तो कोई आवाज़ उठा ही नहीं सकता था. सो दिस काइंड ऑफ फियर every Indian had in his heart. So Mahatma Gandhi wanted that fear to be eliminated. Most of the arable land, arable means fertile land, in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. So the owners of these estates, these fields were Englishmen, Britishers, and the Indian farmers were the tenants, sharecroppers. वो किराए पर खेती किया करते थे. The chief commercial crop was indigo. So what was the chief commercial crop? Indigo. The landlord forced all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. Dear students, this is very important point. Read it carefully. Indian tenants, Indian farmers had to grow indigo on 15% of the land, and they had to surrender the whole indigo crop as the rent of the land. Let me give you an example. For example, किसी किसान ने 10 एकड़ ज़मीन ली ब्रिटिशर्स से किराए पर, तो उसे 15% पर इंडिगो उगाना था. दिस वॉज कंपल्सरी. तो 15% हुआ 1.5 एकड़. 10 एकड़ का 15% 1.5 एकड़. तो उसे 1.5 एकड़ पर नील की खेती करनी होती थी, और वो सारा का सारा नील उस 10 एकड़ के किराए के तौर पर उसे ब्रिटिशर्स को सौंपना होता था. दिस वॉज द सिस्टम. दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. सो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, काफ़ी समय पहले हुआ था. उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग दे वर बाउंड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% लैंड. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. Indian farmers were growing natural indigo, but Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब ब्रिटिशर्स को पता लगा कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है जो कि चीपर है और क्वालिटी वाइज अच्छा है. मीन्स वैसे तो सस्ता है लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छा है. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी डिमांड बढ़ गई. तो नेचुरल इंडिगो की कोई ख़रीदारी नहीं करने वाला था. तो अब ब्रिटिशर्स को नील की खेती करने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया. बट दे न्यू इट वेरी वेल दैट इंडियन फार्मर्स वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट सिस्टम. तो उन्होंने सोचा कि हमें तो वैसे भी नील की खेती छोड़नी है, वाई नॉट गेट कंपनसेशन फ्रॉम इंडियंस. उनको तो पता ही नहीं है कि भाई हम छोड़ने वाले हैं, बट इस मौके का फ़ायदा उठा लो. उन्होंने इंडियंस को बोला कि भाई तुम चाहते हो ना कि हम नील की खेती से तुम्हें आज़ाद कर दें. इंडियंस ने बोला यस. तो ठीक है, एक बार पैसे दे दो, हम फ्री कर देंगे, तुम्हें नील नहीं उगाना पड़ेगा. सो दे गोट कंपनसेशन. इंडियंस बहुत सारे ऐसे थे जो चाहते थे कि एक बार पैसे दे के फ्री हो जाओ, फिर हम अपनी मर्जी से जो उगाना चाहेंगे वो उगा लेंगे. द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome. Irksome means difficult to the peasants, to the farmers, and many signed willingly. और बहुत सारों ने साइन कर दिया कि भाई चलो छुटकारा मिलेगा,
डिफ़िकल्ट चीज़ से छुटकारा मिलेगा, उन्होंने साइन कर दिया कंपनसेशन देने के लिए. दोज हु रेजिस्टेड, दोज हु डिड नॉट ओबे, दोज हु रिवोल्टेड एंगेज्ड लॉयर्स. ऐसे इंडियंस जो नहीं देना चाहते थे कंपनसेशन, उन्होंने लॉयर्स को एंगेज कर लिया. द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स, थग्स हेयर क्रिमिनल्स, गुंडे हायर कर लिए लैंडलॉर्ड्स ने. इंडियंस ने तो लॉयर्स को हायर किया उनकी तरफ से केस लड़ने के लिए, और ब्रिटिशर्स ने गुंडे हायर कर लिए उनको पीटने के लिए. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants. और जब ये सब कुछ चल रहा था ना, एट द सेम टाइम अनपढ़ किसानों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई. कौन सी? कि भाई जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है. और कौन से किसानों के पास पहुंच गई? जिन्होंने साइन कर दिए थे, जिन्होंने कंपनसेशन देने के लिए अपनी हाँ कर दी थी, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है. एंड दे वांटेड देयर मनी बैक. और वो समझ गए कि इनको तो खेती वैसे ही नहीं करानी थी नील की, इन्होंने तो हड़प लिए हैं हमसे पैसे. मीन्स इन्होंने तो धोखेधड़ी से लिए. अगर हम साइन नहीं करते, हम कंपनसेशन नहीं कर देते, तो भी इन्होंने तो वैसे भी बंद करानी थी, क्योंकि इनको पता था इसमें कोई फ़ायदा नहीं था अब इनको. सो दे वर वेरी क्लेवर पीपल. दे केम टू नो, और उन्होंने क्या कहा? हमारे पैसे वापस दो, जो हमने कंपनसेशन दिया है वापस दो. एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण. और ये जो अब सिचुएशन बताई है, जब फार्मर्स ने अपने पैसे वापस मांगे, सेम उसी समय पे चंपारण में गांधी जी का आगमन हुआ. और कौन लेके आया उनको? राजकुमार शुक्ला. ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स. सो महात्मा गांधी वांटेड टू गेट द फैक्ट्स. फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन. ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास गए वो. द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो information to an outsider. According to the secretary, Mahatma Gandhi was an outsider. Gandhi answered that he was no outsider, कि वो outsider नहीं है, he was an Indian. कुल मिलाकर के बात ये थी, ब्रिटिशर्स डिडंट वांट महात्मा गांधी टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस मैटर. दे वर वेरी क्लेवर. वो अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं मानते थे. उनको पता था कि दुश्मन कभी भी मजबूत हो सकता है, कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है. सो उनके अकॉर्डिंग क्यों दे वो इन्फॉर्मेशन, क्यों अपना एक दुश्मन खड़ा करें, क्यों एक लीडर दें उन गरीब किसानों को. सो दे डिडंट वांट टू गिव हिम एनी इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave तिरहुत. अब चंपारण जो था वो तिरहुत के प्रोविंस के अंडर में आता था, और तिरहुत के जो कमिश्नर थे उनको महात्मा गांधी ने कहा कि भाई मुझे मामले की जानकारी दी जाए. बट द कमिश्नर was also the same kind of person as the secretary was. कमिश्नर ने महात्मा गांधी को बोल दिया, यहाँ से जल्दी निकल जाओ, डांट करके. गांधी डिड नॉट लीव. इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी. मोतीहारी चले गए वो इसके बजाय. द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की कैपिटल थी. सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ी भीड़ ने महात्मा गांधी का स्वागत किया. दिस काइंड ऑफ I showed you the pictures in the last video, and I think I am not able to show you now. I shared with you a video the first day when I wanted you to have a background reading of the story.
In that movie also you had a scene in which Mahatma Gandhi came out of a train and there was a very big crowd, and English officials wanted to get him back in the same train. There was a scene, you might have seen that. Gandhi did not leave. uh, Sorry, we have reached here. Greeted Gandhi, बहुत बड़ी भीड़ थी वहाँ पर. He went to a house and using it as headquarters continued his investigations. तो वहाँ पर से उन्होंने अपनी investigations जारी रखी. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Maltreated means mistreated. उनको पता लगा कि एक गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है by Britishers. Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. This scene was also in that movie. वो एक हाथी की पीठ पर बैठ करके चल पड़े उस किसान की खोज खबर लेने के लिए, उसका हालचाल पूछने के लिए. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town. एसपी के मैसेंजर ने उनको रोक लिया बीच में और कहा कि वापस आ जाओ. Look at this. You can clearly see how much afraid these Britishers were from Gandhi. अब तक उन्होंने पता लगा लिया होगा गांधी कौन है, कि उसने साउथ अफ्रीका में क्या किया था और यहाँ पर भी ये क्या कर सकता है. सो दे वर ट्राइंग not to get Gandhi involved in this matter because they know if he was involved, he would become a leader of these peasants, these farmers, and then it would be very difficult for them because he would unite them. So they didn't want him to get involved in this matter. और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि वापस चले जाओ. The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. वहाँ पर महात्मा गांधी को ले जाने के बाद उसने एक नोटिस दिया कि भाई तुरंत चंपारण को छोड़ के चले जाओ. दिस इज एन ऑर्डर. गांधी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. गांधी जी ने रिसीट को साइन तो कर दिया, लेकिन उस पर क्या लिखा कि वो आज्ञा को नहीं मानेगा. ही वुड नॉट ओबे द ऑर्डर. सरकारी आदेश को मानने से मना कर दिया गांधी ने कि नहीं जाऊंगा मैं. इन कंसिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ summons to appear in court the next day. This scene was also there in the movie which I shared with you. All night Gandhi remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to Ashram. He wired a full report to the Viceroy. पूरी रात वो जागे रहे. उन्होंने अपनी प्लानिंग की. राजेंद्र प्रसाद को बुला लिया पटना से, अपने अच्छे इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ आ जाओ. और उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेज दिए अपने आश्रम में कि भाई अगर मुझे कुछ होता है, इफ़ आई एम नेब्ड, इफ़ आई एम अरेस्टेड, इफ़ आई एम सेंट टू जेल, व्हाट यू वुड हैव टू डू. और उन्होंने वायसराय को भी एक पूरी रिपोर्ट भेज दी मामले की, ताकि हाई कमान को भी पता रहे कि क्या हुआ है क्या नहीं. मीन्स एंड ही डिड ऑल दिस बिकॉज ही न्यू व्हाट वाज द strategy to fight with these Britishers, because he was also a lawyer. He had known all these things minutely. That's why he had done all these things. Morning found the town of Motihari black with peasants. They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. अब किसानों को ये पता लगा भाई कि भाई हमारी हेल्प करने के लिए जो ये इंसान आया था उसको ऑफिशियल्स ने फंसा दिया है. हमारी हेल्प करने के लिए आया था और अब वो हमारी वजह से मुसीबत में है. उन्होंने ये बात सुनी एंड दे स्टार्टेड कमिंग.
पूरा का पूरा टाउन ब्लैक विद पेजेंट्स मीन्स उन सर ही सर दिखाई दे रहे थे। इतनी भीड़ थी कि ब्लैक हेड ही दिखाई दे रहे थे लोगों के। देयर स्पॉन्टेनियस मीन्स स्वच्छंद, दैट हैज़ नो आर्टिफिशियलिटी, दैट हैज़ नो मोटिवेशन ऑफ अदर्स। कई बार आपने देखा होगा पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं पैसे दे करके भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, किसी तरह के लालच दे करके भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, और वो लोग जो होते हैं वो सिर्फ दिखने के होते हैं, उनके अंदर वो जोश नहीं होता। बट ये लोग खुद आए हैं। सो दे वर स्पॉन्टेनियस मीन्स स्वच्छंद, अपनी इच्छा से। डेमोन्स्ट्रेशन, उन्होंने प्रदर्शन किया अपनी इच्छा से, इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। तो ये शुरुआत थी ब्रिटिशर्स से डर, ब्रिटिशर्स के डर से आज़ादी की। पहली बार उन्होंने ऐसा किया था कि इतने सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी और वो अपने डर, जो ब्रिटिशर्स से डरते थे ना, उस डर से आज़ादी की शुरुआत थी ये। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीजीज कोऑपरेशन, ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड। गांधी जी के कोऑपरेशन के बगैर भीड़ को वो रोक ही नहीं पाए ऑफिशियल्स, तो उन्होंने उनकी हेल्प की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट their might, their power hitherto till now dreaded, fearful and unquestioned means जिसका कोई जवाब नहीं था, उनकी पावर का कोई जवाब नहीं था, और वो बड़ी फियर स्केयर करने वाली थी उनकी पावर। अब तक था ऐसा कि उनकी पावर बड़ी, उनकी उनकी ताकत का कोई जवाब नहीं था। दैट पावर कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। महात्मा गांधी ने प्रूफ दे दिया उनको कि भाई तुम्हारी पावर का वैसे आज तक कोई जवाब नहीं था, बट इस पावर को चैलेंज किया जा सकता है इंडियंस के द्वारा। और किस तरह से दिया वो प्रूफ, ये इतनी सारी भीड़ इकट्ठा करके। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, गवर्नमेंट चकरा गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, भाई मुकदमे को पोस्टपोन कर दो। क्यों? अगर इस इंसान को हम सजा देंगे अभी तो वो भीड़ अंदर आकर के हमारे को मार देगी, तो मामले को पोस्टपोन करो। अपेरेंटली क्लियरली द अथॉरिटीज विस्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, अथॉरिटीज़ भी अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहती थी, बट देयर वर नॉट फ़ोन फैसिलिटीज़ एट दैट टाइम। सुपीरियर से कंसल्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि फ़ोन करके बात कर लो, वो दूर बैठे थे, उनसे बात करने के लिए टाइम चाहिए था। सो आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। टिल देन माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।